let me sum up first, then we'll go back and draw your attention to certain things. So when I go to understand the harmony in the human being, harmony in individual, then I realize that human being is a coexistence of self, I, and the body. The self, I, is of the type consciousness. The body is material. And there is a coexistence between the self, I, and the body. If I look at the need of the self, it is different. If I look at the need of the body, it is also different. Because these are of two different types, their needs are also of different types. The need of the self is in the form of happiness or respect, right? Which is a consciousness activity. It is in the form of feeling. If you look at the need of the body is a material thing. Its needs are also material. Physical facility, right? Food is material. The nature of consciousness is continuous in time and qualitative. The nature of material is temporary in time and it is quantitative. The need of the self is fulfilled by right understanding and right feeling. Right? This is also the activity of consciousness. Right understanding, right feeling, right, is an activity in the self. It is not material. Whereas physiochemical things are material. Similarly, if you look at the activity of the self, they are continuous. Right? These are consciousness activity, and they are continuous. If you look at the activity that you take from the body, right, they are temporary, because this whole material world is temporary. This is consciousness. Therefore, this activity of knowing and assuming is there in the self. It is not there in the body. So in order to understand the human being, I need to understand this world of consciousness. I need to understand this world of material. I have to identify the needs of this consciousness. I need to identify the need of the material body, and I need to fulfill them both. And you can see one cannot be fulfilled by the other. Both of them have to be fulfilled. Both of them have to be taken care of. तो अभी पूरे को देखेंगे तो ये समझ में आता है कि मानव जो है मैं और शरीर के सहस्तित्व के रूप में, मैं जो है वो एक चैतन्य इकाई है, शरीर जो है वो जड़ है। मैं की आवश्यकता सुख सम्मान आदि के रूप में है ना, और ये चैतन्य क्रिया है। शरीर की आवश्यकता सुविधा के रूप में है, भोजन के रूप में है, ये सब भौतिक रासायनिक वस्तु है, जड़ वस्तु है। तो जड़ की आवश्यकता जड़ और चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य। इसीलिए चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से ही पूरी होती है। तो सुखी होने की जो आवश्यकता है वो सही समझ से सही भाव से पूरी होती है, तो चैतन्य क्रिया ही है। शरीर की आवश्यकता भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होती है, जो जड़ है। शरीर भी जड़ है, शरीर की आवश्यकता भी जड़ है, इसलिए उसका पूर्ति भी जड़ वस्तुओं से होगा कि नहीं। तो अगर आप बहुत सम्मान देते रहें, भोजन ना दें, तो शरीर का काम नहीं चलेगा, मैं का काम चलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप भोजन दें और सम्मान ना दें, तो शरीर का काम चलेगा, मैं का काम नहीं चलेगा। आदमी के लिए दोनों की जरूरत है।
ठीक है, इतना कहना, इसकी जांच परख करके बताइए, इस पर कोई प्रश्न है? क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल बात है ना, इतने को समझना बहुत फंडामेंटल काम है। एक बार ये समझ में आएगा तो अभी तक के बहुत सारी जो ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। हम खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि अभी तक जो माने थे उसमें कहाँ स्लिप हुआ। और आगे अपने को क्या करना है वो भी तय कर सकते हैं। आगे क्या करना है तो क्लियर ही है, इसको भी पहचानना है, समझना है, इसको भी समझना है, इसकी भी आवश्यकता को पहचानना है, इसकी भी आवश्यकता को पहचानना है, इसको भी पूरा करना है, इसको भी पूरा करना है। तो सही समझ और सही भाव से सुखी होना है और आवश्यक सुविधा भौतिक रासायनिक वस्तुओं को सुनिश्चित करके समृद्ध होना है। नहीं चाहते हैं तो सुविधा से शरीर की आवश्यकता पूरी होने वाली, मैं की आवश्यकता पूरी होने वाली, शरीर की आवश्यकता पूरी होने वाली। इस अर्थ में देखेंगे तो सुविधा की आवश्यकता सीमित होगी, असीमित होगी, सीमित होगी, पता चलने लगेगा। तो अभी जो असीमित सुविधा संग्रह कर रहे थे वो स्पष्ट हो जाएगा। मैं की आवश्यकता पूरी करने के लिए सही समझ और सही भाव है ना, वो तो भौतिक रासायनिक है ही नहीं। सिर्फ शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए भौतिक रासायनिक वस्तुओं की जरूरत है, फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत है, ठीक। और वो हमेशा लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, इसलिए फिजिकल फैसिलिटी के रिक्वायरमेंट लिमिटेड है। ये सब बातें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। इसलिए ये जितनी बात यहाँ लिखी है इसको ठीक से जांच परख कर लीजिए। ये बहुत फंडामेंटल होता है, क्योंकि जो गलती हो गई है वो आदमी को समझने में ही गलती हो गई, इसलिए बाकी गलतियां होती हैं उसके ऊपर बना तो दिया। किसी की अटेंडेंस तो नहीं बाकी। Go on exploring this. I'll make a few more observations and also work out some of the exercises. Right? If you look at this, right? These are the two types of needs. One is the need for happiness. The other is the need for physical happiness. And all that you have been thinking of or desiring for has to do with either of it. So it either has to do with happiness, right, or with physical facility. It either has to do with the need of the I, the self, or need of the body. If you expand this, this is in terms of need for understanding and need for feeling, right? And need for physicochemical things. Okay. So if you rightly identify, this is all that is there. Okay. So let's do a homework, right, or an exercise. Write it here.
make a list of your desires, right? Which you have been believing that are unlimited. Right? So whatever desires you had, they must have by now got very limited. But whatever it has been, make a list of them. Then divide them into categories. Those, divide them into categories. Those related to need of I. Those related to need of I. You can do this exercise, right? Each one of you can do this exercise. You make your list of desires and then divide them into two categories. The desires which are related to the need of the I. Desires which are related to the need of the body. So for example, you want name, right? Fame. This fame is a need of the I or need of the body? Right. Food is the need of the eye, need of the body. Body. Taste is food. Taste is the need of the eye. Right? Food is the need of the body. Respect. Just as we had a tea, we were feeling that we should have tea, and after taking the tea, we feel rejuvenated. So tea comes in both the categories. Yeah, if you focus on the taste of the tea, then it has to do with the eye. If you are focusing on, getting some nurturing out of it, then it has to do with the body. So you list out all these desires, right? Then find out which one of them are related to the self, the I, need of the I. Which one of them are related to need of the body. And you can also see how you shift, if you are not aware. Like clothes. Clothes is need of body, related to need of body or related to need of mind? So if you are looking for clothes for protection of the body, is it related to need of the body? If you are wearing clothes to get respect, then it is related to need of the eye. And you can see, when you focus on the need of the body, clothes as the need of the body, for the protection of the body, it is required in a limited quantity, unlimited quantity. Limited quantity. So if you want 4 pairs of clothes, right, every season, and there are 3 seasons in this country, right, so you would need something like 12 pairs of clothes, right? Limited. You may need 24 or 48, but it is limited. Now if you are wearing clothes to get respect, then it will be limited, unlimited. Unlimited. Jayalalitha has got 10,000 sarees. And it is not enough. Right? It's still limited. It's still limited, but she wants to make it unlimited. Aspiring for it.
named Marcos. Ivana Marcos. Philippines. Yes, she had to run away Wasn't she Argentine? from Philippines because there was a coup and she took over. So she ran away in with 7 planes of her belongings. Out of that, 3 planes were loaded with shoes only, shoes and chappals. Was she able to run away 30,000 chappals and shoes. Yeah. with 7 planes to run away? Unlimited Earth? So 30,000, right? Yes. And if you hear one, right, every day, how much time will it take? God. 30,000 shoes. Hmm? 90 years. And she wouldn't live for 90 years. So, I mean, you don't even look into it. So, let's do this exercise for ourselves. Leave Marcos alone. Ourselves as smoke. So, with the evening, we'll list that down. We'll make a chart of all your desires, right? Jot them down here. Then tick, right? Related to the need of eye or related to the need of body. If you do this, very interesting conclusions will come. Right? It will become obvious. Simply, I want to ask a question. Sir, if you don't mind, I want to ask, sir, what are your own desires? वो ये तो लिखा ही यहाँ पर। अभी तो आपका भी यही डिजाइन होने वाला है। वो तो पहले वाले की बात हो रही है। Okay. हर मनुष्य का तो डिजायर यही है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड इट्स कंटिन्यूटी। हमारा भी वही डिजायर। अभी समझने के बाद आपका वही डिजायर होने वाला है, ठीक है ना? फिर हैप्पीनेस के लिए क्या करना है? वो डिजायर सब डिजायर है क्या? हैप्पीनेस के लिए इसको समझना है, इस हार्मनी को समझना है, इसमें हार्मनी में जीना। ठीक? फिर फैमिली में हार्मनी को समझना है, हार्मनी में जीना। वो सब डिजायर है, ठीक है ना? D1, D2, D3, D4 है। देखिए अभी तक क्या है, अभी जो हमारा, अगर आप अपने इसको देखें ना, डिजायर को थोड़ी देर के बाद अगर आपको कनेक्ट करेंगे ना तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये पिक्चर है। धीरे धीरे पहुंचना हम चाहते हैं यहाँ पर। बेसिक डिजायर वो क्या है वो समझ में अगर आ जाए, उसके लिए सब डिजायर क्या है ये समझ में आ जाए, है ना? उसके लिए थॉट्स क्या क्या होंगे, फिर इसके लिए सिलेक्शंस क्या क्या होंगे, ऐसा कैनवास अगर क्लियर बनने लगे, then you feel that you are sorted out, within. That is the meaning of clarity. This is the meaning of confusion. बाहर बहुत चोरी होने की जरूरत नहीं अभी, है ना? ये सब अपने में ही होना है। अभी यहाँ से यहाँ ट्रांजैक्शन चाहिए। आप कहाँ पर है इसको देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है। जैसे जैसे समझ में आने लगता है वैसे वैसे दिखता है। हैप्पीनेस चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस चाहिए, उसके लिए
understanding of the harmony in self, and living in harmony with self, living in harmony in family, society, culture. इतने सब करना है तो बहुत काम नहीं है, अभी बहुत काम करना है। जब पता ही नहीं क्या करना है बहुत काम है, जब पता चल जाए काम करना क्या करना है तो निश्चित हो जाता है। बस इतना ही काम, सुखी होना, समृद्ध होना, इसका निरंतरता को सुनिश्चित करना है। तो जो भी है उसको अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे कंक्लूजन आप ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। उसमें से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यह है कि इफ यू लुक एट द नीड ऑफ लिस्ट ऑफ योर डिजायर एंड सॉर्ट देम आउट, you realize that it has always been possible for you to sort it out. Only thing is that you have not been paying attention. अभी आपसे ही पूछेंगे ना, जैसे 2-3 प्रश्न पूछा अभी, आप खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं कौन सा नीड ऑफ द बॉडी है, कौन सा नीड ऑफ द आई। एक तो ये समझ में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आती है कि ये रिलेटेड टू नीड ऑफ द बॉडी, the items are very few. उसको अभी शाम को जब करेंगे तो है ना वो क्लियर हो जाएगा। At the most you can have 10 items of desires which relate to the need of the body. Rest of them are related to the need of mind. Right? But unfortunately you have been trying to fulfill that need of the eye through the physical facility, which can only fulfill the need of the body. And the moment you do it, your need for physical facility seems to be unlimited. So these conclusions you can draw when you do this exercise. So this is one important observation. So if you do this exercise one, this important conclusion can be drawn. Just one question. When you say I, is it, and you translate it as men, when the term Atma is not considered to be an appropriate word? Yeah. It's not appropriate. Are there reasons for that? Yeah. You see, we have been talking about this word Atma without really knowing what it is. Okay? I can see, look into myself, right? Investigate into these details. It is possible for each one of us to do it. Right? If this investigation can be made, it is unimportant to call it by any name as such. But when you say Atma, there is a whole lot of connotation already associating with it. So let's look at it as the self, mind. Right? We look into the details of this mind. Right? And if there is some activity of mind, right, the self, which can qualify as having those characteristics which are assigned to Atma, right? We'll call that Atma. Right? The interesting thing about Atma has been, this Indian context, right? When you say Atma, you think that you know what is Atma. But you say a whole lot of things about Atma. Right? You say it is uncorrupted, शुद्ध बुद्ध है, ये भी बताते हैं। फिर आप अपने को देखते हैं तो आपको लगता है आप तो शुद्ध बुद्ध है नहीं। तो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं।
है ना? तो क्या है, अभी मैं अपने बारे तो देख सकता हूँ, अपने बारे समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ, जो कुछ भी है इसको फिर और इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ कि क्या है, क्या हो रहा है मेरे में, है ना? जैसे मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये तो मैं अपने में देख ही सकता हूँ। तो अभी उसके लिए आत्मा शब्द इसलिए प्रयोग नहीं करना चाहते और आगे भी नहीं करेंगे इसके लिए, है ना, सुनाई के लिए, क्योंकि उसका एक बहुत स्पेसिफिक कॉनोटेशन है, ठीक है? उसके आधार पर इसको अगर कनेक्ट करने जाएंगे तो ये तो कनेक्ट होता नहीं, कि जो कॉनोटेशन है, जैसे आप अपने बारे स्टडी करिए, सेल्फ के बारे में, तो शुद्ध बुद्ध कहाँ है? इतना तो आप में कंफ्यूजन लगा हुआ, क्या शुद्ध बुद्ध है? So it is better to use this word self or mind and investigate into it. Here I has ego, satisfaction, muscle power, all sort of pain, need. There I need to say Atma is not having any other thing. That's the big sacrifice, simplest thing of the life. हमें थोड़ा इसको समझ Just लेते living हैं। this. वो क्या है? ये सब हम लोगों ने बिना समझे चीजों को मान लिया, ठीक है ना? तब हियर एंड देयर लग रहा है। अभी हियर को समझ लेते हैं पहले, ये हियर का कुछ पार्ट देयर भी हो सकता है क्या? उसको देखेंगे। So this is exercise 1, है ना? ये जो अभ्यास अभ्यास है? अभ्यास चलिए मैं भी लिखता हूँ अभ्यास, लेकिन अच्छा शब्द नहीं है। मतलब इसलिए अच्छा शब्द, एक्सरसाइज के लिए अच्छा शब्द नहीं है। जी जी अभ्यास का उस अर्थ जो है वो ज्यादा ब्रॉड मीनिंग है उसका, है ना? तो अभी हम बोल करके लिख देते हैं। हिंदी की किताबों में अभ्यास ही होता है ना? ठीक है, ठीक है, अभी उतना ही रखते हैं। एक तो आपको चाहना की सूची बनाना है, इसको 2 भागों में बांटना है। शरीर से जुड़ी हुई आप Shamli, your attendance. The second exercise is that you make a list of your activities, whatever activities you are doing, okay? And divide them into categories, the activities of I and the activity of I. इसको कसरत बोला जाएगा।
तो देखिए, जैसे आप सोच रहे हैं, सोचना इज एक्टिविटी ऑफ आई और बॉडी। डाइजेशन ऑफ ब्रीदिंग, लर्निंग और लिसनिंग। Learning is the activity of mind. Listening, Hearing is body. Otherwise, I take off and only the hearing takes Reading place. is body and learning is eye. I take off. अभी हियरिंग जब करते हैं, है ना, या लिसनिंग कर जब हम कर रहे हैं, तो दोनों पार्ट है। There is some effect on the body, right? Then I am sensing that effect on the body. Then I am making a sense of it. So both are involved. Right? First the body is involved, then the self is involved. Similarly, when I am speaking something, डाइजेशन के केस में बॉडी और इन्वॉल्व होता है। अगर डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होता तो मेंटली इन्वॉल्व होता है बॉडी। हाँ, वो तो ठीक है। डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है ना, तो आपको सुनना मिलती रहती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप परेशान होते रहते हैं, ये बात ठीक है ना। लेकिन आप हर बार ये पूछ के तो डाइजेस्ट करते नहीं कि उसको डाइजेस्ट एक बार नीचे गया है ना, वो काम अपना चलता रहता है। खाए कि ना खाए उसमें आप तय करें। तो वो भी तो डाइजेशन का कहीं ना कहीं। हाँ, तो खाने का जो मुद्दा है उसमें आप इन्वॉल्व है कि बॉडी इन्वॉल्व है। आप तय करते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। फिर जब मुंह में रखते हैं आप, तो चबाना है कि नहीं चबाना है, चबाना है तो कितना चबाना है, ये सब तय तो आप कर रहे हैं। फिर जैसा आप इंस्ट्रक्शन देते हैं बॉडी को वैसा करता है ना। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करने लगे तो पता लगेगा कि इतना फाइन फाइन एक्टिविटी चलता है। जैसे आप चबा रहे हैं, आप बाएं तरफ से चबाते रहते हैं, थोड़ी देर में दाएं तरफ ले जाते हैं, ठीक, ये आप ही तय कर रहे हैं, ठीक, बॉडी नहीं तय कर रहा है, ठीक। इसीलिए इधर से उधर करते समय अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया तो जीभ कट जाती है। जीभ इसीलिए कट जाती है क्योंकि वो जीभ को दोनों दांत के बीच में कैसे मूव करना है वो आपको तय करना पड़ता है। उसमें अगर जजमेंट में गड़बड़ी हो गया तो जीभ कट जाएगा आपकी, है ना। इसी तरह से आप सीढ़ी में चढ़ते हैं और उतरते हैं, ठीक है ना। वो उसमें दोनों इन्वॉल्व है, सेल्फ भी इन्वॉल्व है, बॉडी भी इन्वॉल्व है। आपको लगता है कि आप उतरते जा रहे हैं सीढ़ी, है ना, आपको कोई डिसीजन लेना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप 8 इंच की सीढ़ी से उतर रहे हैं और अचानक 6 इंच का एक सीढ़ी आ जाए, स्टेप आ जाए, क्या होता है? झटका लगता है ना। गिरे ना भी तो झटका तो लगता ही है, ठीक। क्या मतलब उसका? उसका मतलब है कि आपने जो जजमेंट यूज किया था पहले से बना के रखा था, है ना, ये 8 इंच की सीढ़ी है, उसके लिए इतना दबाव से पाँव रखना है। तो 6 इंच में उससे कम दबाव की जरूरत है, तो आपने ज्यादा दबाव डाल दिया, इसलिए आपको दर्द लगता है पाँव को, तब आपको खुद आता है जोड़ लगे, तब आप 6 इंच के साथ डिजाइन कर सकते हैं। और अगर 6 इंच के साथ डिजाइन किया फिर 8 इंच आ गया, फिर झटका लगता है। तो फिर क्या होगा? तो दोनों खाओगे? वही तो आप अध्ययन करिए, सारे में नहीं होता जैसे है? Sorry, it is getting confusing. Yeah. सर हर बात में सर आई This और is बॉडी the division of the mind and body. This is what Descartes said. Mind and body are divided, are separate. But, we see that mind and body aren't so separate. It is connotation and association by Yeah. body. See, let's not bring in Descartes in between. I'm saying you look into yourself, right, and you find out whether these activities that you have can be sorted out in these two forms or not. If not, they are not secret activities. If yes, they are two secret entities. So the activity of thinking is the activity of eye or body. Can you make out?
the activity of breathing, digesting, right, is an activity of eye or body. Can you make out? हाँ, ठीक है, उसको लिस्ट करिए, होमवर्क करिए, इसलिए तो एक्सरसाइज दे दिया है. The exercise is a matter of body or eye. हाँ, ये भी तय हो जाए. ये जो एक्सरसाइज करना है, ये माइंड करेगा, बॉडी करेगा. Output कौन देगा? तो इनपुट तो बॉडी के थ्रू आपने लिया, तो बॉडी का एक्टिविटी कुछ हुआ, आपका एक्टिविटी हुआ. ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे आप, फिर आउटपुट जब देना होगा तो बॉडी को इन्वॉल्व करेंगे. तो आप इसको करके देख लीजिए, इसमें मानिए नहीं कुछ भी, है ना. मतलब वो आई डिसाइड करेगा कि कितना बॉडी को इन्वॉल्व करना है. अब इतना पता ही लगने लगता है, इसमें क्या मुश्किल है. हाँ, किरण भाई. मैं कहना चाहता था कि ये समझने की प्रक्रिया से हम करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिसर्च तो चलते रहते हैं. जो मॉडर्न रिसर्च है वो माइंड के बारे में कहते हैं कि माइंड के बारे में हम अभी भी कुछ नहीं कह सकते. इसका क्लियरली जैसे मैंने एक पॉइंट किया था कि बॉडी और माइंड को कहाँ सेपरेट किया जाता है और कहाँ होता है. तो जैसे मेडिकल साइंसेज में और इसमें कई जगह पे वो रिसर्च चलते रहता है और वेस्ट में भी वो चलता रहा है. तो उस इसमें ना पढ़ते हुए सिर्फ समझने के हिसाब से करे तो हो जाएगा, क्योंकि वो तो हर चीज एंडलेस है. अगर हम साइंस में भी जाए तो एटम है, तो एटम के नीचे फिर हमको सब पार्टिकल्स मिले, फिर ये मिले, वो तो चलता ही रहता है. जैसे माइंड और बॉडी कहाँ सेपरेट होता है अभी भी कोई बता नहीं पा रहा है. अभी भी जो रिसेंट ये है वो भी नहीं कह पा रहे. उतना उसमें हम नहीं है कि वो क्या है और सेपरेट है या समझने की दृष्टि से अगर करे तो अच्छा रहेगा. दूसरे देखिए. Can you ask me the question? Okay, let me repeat the question and then I'll give the answer. This question is that the research about mind and body keeps going on, right? So let's not divert our attention to that. Let's try to understand it. That's what we're saying, right? Sir, can I request one thing? Not only mind and body, every research or this process of knowledge constantly goes on. Instead of pointing in that and going in that, it's not that much. Mind separate है या body separate है. Yeah, the relevance here is that. That's- So let me respond to you. When somebody else is studying you, you may not make a conclusive judgment, right? When you are studying yourself, you can make a conclusive judgment. So what we are saying, you investigate into yourself, right? You find out whether you can, right, list out the activities of self and activity of body, and the activity which relates to first self and body, or first body and then self. If you can do this, right, it is possible for you to separate those two activities of I and the activity of body. If you cannot do it, right, it is not possible. That's it. Similarly, if you can make a list of your desires and sort them out as those related to I, those related to body, you can do it. If you cannot do it. So it's rather than going into conclusion which somebody else has drawn, okay, let us do the exercise ourselves and find out whether we can do it or not. So we'll do these two exercises in the evening. Sir, one more question. After the death, it is I which gets separated from the body, or it is Atma that gets separated from the body? Let us understand first while we are alive. तो इसका जवाब Then we'll make conclusions. इसका जवाब भी किसी किताब में उनको मिल जाएगा. वेस्ट में आत्मा जाता है कि नहीं, कांच की डब्बों में बंद करके देखा गया है, मुझे तो नहीं लगता. तो अभी समझ लेते हैं पहले अपने को, है ना. शरीर चलाते हुए जैसा हम जी रहे हैं उसको पहले समझ लें. फिर जब शरीर नहीं चलाएंगे तो उसका क्या हाथ होगा देखेंगे. अभी तो देखिए क्या है, हम अपने बारे ऑथेंटिकली इन्वेस्टिगेट ही नहीं किए हैं.
उसके पहले क्या कंक्लूजन निकालें? पहले इन्वेस्टिगेट तो करना शुरू करें। तो ये काम अभी तक हम लोगों ने किया। इतना अगर क्लियर हो तो इस पूरी बात को थोड़ा रीराइट कर सकते हैं हम लोग। इसको मैं रीराइट करता हूँ।
These are the statements we have made about the self, I, and the body. Read through them and check whether it is right or it is not right for you. I'll read them out. First I have written, I am, my body is. मैं हूँ, मेरा शरीर है. I want to live. The body is used as an instrument. तो मैं जीना चाहता हूँ, शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ. मैं शरीर से कहता हूँ उठो तो उठता है, चलो तो चलता है, बैठो तो बैठता है ना? कूद पड़ो तो कूद पड़ता है. नहीं. शरीर में कोई पोषण का अभाव होता है तो हमको सूचना आती है भूख लगने की. मैं तय करता हूँ भोजन देना नहीं देना. अगर मैंने तय कर रखा है कि आज उपवास है, भोजन नहीं देता. ठीक. बॉडी क्या करता है? 2-3 बार सूचना देता है, फिर आप सूचना लेना ही बंद कर देते हैं. तो आप शरीर का साधन की तरह प्रयोग करते हैं. मैं शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ. मैं जीना चाहता हूँ. इतना ही नहीं कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ. I want to live with continuous happiness. Right? That is my basic desire. Right? For the body, physical facility is required. So physical facility is required for nurturing of the body, protection of the body, and right utilization of the body. तो शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए और सदुपयोग के लिए. इसके लिए सुविधा की आवश्यकता. So I want to nurture the body. Physical facility is required for nurturing of the body. Food is required for nurturing of the body. Physical facility is required for protection of the body. So clothes, shelter is required for protection of the body. And if I am making right utilization of the body, some means may be required. So like when I am talking to you, I am using a mic. In the process of right utilization of the body, I am using the mic. So I speak in a low voice, right? It can still reach you.
or if it is a big hall and my voice cannot reach you, then I am using this mic as a means. So physical facility is required for nurturing, protection and right interaction with the body. Continuous happiness is required for the self, for us. Then if I have to ensure continuity of happiness, I have to understand and live in harmony at all 4 levels. If I want to ensure physical facility, I have to ensure the production, protection and right utilization of physical facility. But I can see that this production, protection and right utilization of the physical facility is only a part of my program. Right? And I have written this part is less than 1/4. What is the meaning of that? Less than 1/4. So इसका हम लिख देते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स वाले नहीं, लेस देन। Visual harmony में जो harmony देनी है, that is of all the 4 levels, this is 1 level, so just 1, और उसमें भी body के साथ harmony is just 1 level, क्योंकि self के साथ harmony भी second level, so that's why it's less than 4. है ना? तो अगर सुखी होना तो ये सारी जगह करना, चारों लेवल पर। इसमें से इंडिविजुअल के लेवल पे हार्मनी एंश्योर करना इज 1/4 है। इंडिविजुअल के लेवल में हार्मनी अगर एंश्योर करना है तो इसमें भी हार्मनी होना जरूरी है, इसमें भी हार्मनी होना जरूरी है, इन दोनों के बीच में हार्मनी होना भी जरूरी है। तो सिर्फ इसमें हार्मनी एंश्योर करने का पार्ट है ये फिजिकल फैसिलिटी का प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए 1/4 से भी लेस। ठीक है, तो मैं जो है ये सुखी होने का कार्यक्रम क्या है? इन 4 स्तर पर व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में सुविधा का उत्पादन, संरक्षण, सदुपयोग करना जो है वो हमारे इस कार्यक्रम का एक भाग होगा, और वो भाग 1/4 से भी कम होगा। अभी आप देख लीजिए, अभी आप इस पूरे को सुनिश्चित कर रहे हैं या सिर्फ इसको सुनिश्चित कर रहे हैं? पूरे को सुनिश्चित कर रहे हैं, है ना? सभी स्तर पर व्यवस्था को समझकर व्यवस्था पूर्वक जी रहे हैं, उसका एक पार्ट है ये। तो इस पूरे को सुनिश्चित कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, या सिर्फ इतने को इंश्योर कर रहे हैं? इतने को भी नहीं कर पा रहे। राइट यूटिलाइजेशन नहीं है, शरीर के प्रोटेक्शन के हिसाब से कपड़े पहन रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं है। बॉडी के नर्चरिंग के लिए भोजन कर रहे हैं या टेस्ट के लिए कर रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं है। सब यहाँ भी नहीं है ठीक, यहाँ भी ठीक नहीं मामला, इतना भी ठीक से नहीं कर रहे। इतने को भी, एक तो 1/4 से कम में जी रहे हैं, उतने को भी ठीक से नहीं कर रहे। को भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। अभी भोजन करते हैं, नर्चरिंग को ध्यान में रख के करते हैं क्या बॉडी के, या टेस्ट को ध्यान में रख के कर रहे हैं। कपड़े पहन रहे हैं, शरीर के प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के पहन रहे हैं, सम्मान पाने को ध्यान में रख के कर रहे हैं। जो घर बना रहे हैं वो शरीर के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, या दूसरे को दिखाने को ध्यान में रख के कर रहे हैं। इसी तरह से शरीर का सदुपयोग करते हैं या कुछ भी करते हैं। सुविधा का भी ऐसे हालत है, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन, राइट यूटिलाइजेशन करते हैं कि नहीं, सदुपयोग करते हैं कि नहीं।
आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा। जब तक सदुपयोग पे ध्यान नहीं जाता तब तक समृद्धि पता नहीं चलता, प्रॉस्पेरिटी का पता नहीं चलता। जैसे आपके घर में एक सोफा है, कितने घंटे के लिए उपलब्ध है? सोफा, if you have a sofa in your house, how long it is available, how much time it is available in a day, or 24 hours, Once in a week. right? How much time you are utilizing? Once in a week. Once in a week, right? If you take the average, it will not be more than half an hour. Because you generally don't sit in sofa, right? Only when the guests come, you make him to sit there. Drawing room smile. Now, just imagine, you are using it for half an hour. It is there for 24 hours. What is the efficiency? So if they had You just sit on it, have the sofa. Or some arrangement at community level should be made. You have to start Shift thinking the of it, right? sofa today from You have to there. start thinking of it with a sense of responsibility. Okay? Maybe, there is a collective sofa, where everybody's guest can come and sit. Maybe that you design your sofa in a manner that it can be used as a sofa. It can also be used as a bed. Right? So at least you will use it for 8 hours. Yeah, you see, if you start thinking with that sense of responsibility, then you will be more creative than what you are. You are making a very non-creative use, right? An irresponsible use of things. So if you start really paying attention to it, even with this 1/4 or less than 1/4, you will be more creative than what you are. Like I keep asking this, how many of you know how many pairs of clothes you have? How many of you have an idea of how many pairs of clothes you have? One person. Just imagine, if you don't even have the idea of how many clothes you have, right? Are you making a right utilization of it? जब पता ही नहीं है कितना है, तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड कीपिंग क्या करेंगे? इतनी सिंपल चीजें हैं, है ना? कुछ नहीं सोचे, हम अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं, सिविलाइज मानते हैं। एक सिविलाइज आदमी जिम्मेदार होगा कि गैर जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार होगा। और आप कपड़ा रखे हैं, कितने कपड़े हैं पता नहीं है, आपको जिम्मेदार माने गैर जिम्मेदार माने? ऐसा प्रश्न अभी नहीं पूछे ना, एक दो दिन बाद पूछते बिल्कुल अभी पूछिए तभी तो जब तक झिझोरे नहीं जाएंगे तो जागेंगे भी तो नहीं। नहीं, अभी तो पहले जगा तो दें। हाँ वही आपको प्रश्न ही जगाएंगे हम लोगों को। नहीं, प्रश्न देखिए, समस्या को पॉइंट आउट करने से जगते थोड़ी है, समाधान से जगते हैं। अभी समाधान की बात कर रहे हैं, ठीक? फिर समाधान का पता होगा तो थोड़ा सा कुछ पूछ लें पर्याप्त है ना, आपका ध्यान जाता है कि क्या कर रहा हूँ सुविधा है ना। कमरे बना दिए, अभी जितने कमरे बनाए उसमें रहते हैं कि नहीं? अगर जितने कमरे बनाए उसमें रहते नहीं है तो लायबिलिटी है, उसका सफाई करना एक काम, फिर उसके लिए आप मेहरी रखेंगे, ठीक है ना? तो मेहरी को मैनेज करना एक बड़ा काम है। उसके साथ दिन भर आप झगड़ा करेंगे। और क्या? Sir, in the same manner, we are 8 to 10 hours out of our house. तो उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता, और सब लोग लगे हुए रहेंगे। एक दिन आएगा तो सबकी लड़ाई हो जाएगी तो इसको भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। एक तो पूरा कर नहीं रहे, लेस देन 1/4 पर फोकस कर रहे हैं, दूसरा लेस देन 1/4 को भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, कर भी नहीं सकते। इसको समझे बिना, इस पार्ट को इंश्योर किए बिना यहाँ पर राइट यूटिलाइजेशन का काम हो ही नहीं सकता। देखिए, शरीर का राइट यूटिलाइजेशन, सदुपयोग का बात कभी आपको समझ में नहीं आता अगर आप अपने को शरीर मान के जी रहे।
बगल में एक नारायण जगह है, वहाँ पर एक हमारे मित्र वर्मा जी रहते हैं, उनकी कहानी में बार बार बताता रहता हूँ। उनके पास एक फिएट गाड़ी है, वो हर संडे को उसको निकालते हैं, आप करते हैं, बैटरी वैटरी चेक करते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं, उसको एक राउंड घुमाते हैं कॉलेज में, है ना, उसके वापस करते हैं। उससे वो कहीं जाते आते नहीं, कहीं नहीं पहुंचते हो। ठीक है ना? तो वर्मा जी की कहानी तो बहुत अपने को फनी लगती है। हम क्या कर रहे हैं, शरीर के साथ यही कर रहे हैं, शरीर को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, है ना, बस उससे जा कहीं नहीं रहे, उसका कोई सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं का पता ही नहीं है, मैं का जो सदुपयोग करने वाला है शरीर का, जब मैं का पता नहीं है तो शरीर के सदुपयोग का क्या पता लगे। अभी मैं को समझता हूँ, शरीर को समझता हूँ, तो पता चलता है कि शरीर का एक साधन है, मैं का एक साधन है शरीर, और मैं के निरंतर सुखी होने के लिए शरीर का साधन की तरह सदुपयोग होता है। क्या सदुपयोग है? सही समझने में उसका सदुपयोग है, सही समझ गए तो सही जीने में उसका सदुपयोग है। ये मैं के द्वारा शरीर का सदुपयोग है। अभी मैं का ही पता नहीं है, मैं के कार्यक्रम का ही पता नहीं, सदुपयोग का क्या पता लगेगा। तो वर्मा जी जैसा जो है, हम घुमा रहे रोज शरीर सर वर्मा जी ने कभी आपका लेक्चर अटेंड किया? कभी लेक्चर अटेंड किया? अभी तक नहीं किया, इसीलिए अभी तक चला रहा है। लेकिन सर उस पीएड की वजह से ही बिकम वेरी पॉपुलर। यहाँ भी घूमते तो आप अगर देखें ना, रोज सुबह घुमा रहे हैं शरीर को 1 घंटा 2 घंटा, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसका कोई सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। कल संडे तो देखने को मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, बहुत पास में ही है यहाँ पे। सर कल भी ये चलेगा से ये सभी के मध्य था। कोई देखिए ये क्या है, जब हम निरर्थक करते हैं ना, तो निरर्थक से छुट्टी चाहते डेविड संभालो। सार्थक में छुट्टी की जरूरत नहीं। अभी आप सोचिए 8 घंटे रोज हम लोग चर्चा करते हैं, आप अभी एक क्लास करते तो परेशान हो जाते, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। मैं गया वहाँ अरविंदो सोसाइटी, अरविंदा बोलकर उनका एक सोसाइटी, they are doing lot of work on education. So on children, child education also. So this one of the person who is working there was telling me that the length of the class, the timing of the class should be less than 15 minutes. 15 minutes. 1-5. Because the attention span of the people is just 5 minutes. So 5 minutes you take to build up, 5 minutes you put in material, whatever you want to put, and 5 minutes you wind up. So 15 minutes. Okay? If you are talking things, right, which are not meaningful, then even 15 minutes is more, 5 minutes is more. If you are talking about things which are meaningful, right, you can go on. 8 hours is also not enough. Or 7 days, or 8 days. Right? You can go on talking about all this. इतना तभी तो इनको क्लियर हो गया। चांस ले रहे थे। So look into these 4 things, right? This is a part of this thing, and this is a 1/4, less than 1/4 part of this. As a human being, I need to ensure continuity of happiness through understanding of harmony and living in harmony at all levels, right?
self to entire existence. One more thing which I need to add here then. You can keep including. This is a significant point. I am the seer, doer and doer. Body is used as तो मैं दृष्टा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ. शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ. दृष्टा का मतलब है देखने वाला. इसी बहुत स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं. जब ये देखने का तृप्ति बिंदु मिल जाए, मतलब when I am able to understand the reality, the existence, then it is called vision. लेकिन देखने का काम हम सभी करते हैं. ठीक ठीक देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ये मुद्दा है. तो देखने वाला, समझने वाला मैं हूँ, शरीर है. मैं हूँ, ठीक है. शरीर का प्रयोग करता हूँ देखने के लिए. आवश्यकता होती है तो देखने के लिए शरीर का प्रयोग करता हूँ, नहीं तो नहीं भी प्रयोग करता हूँ. जैसे अभी यहाँ पर देखिए आप, है ना, तो जो मैं लिखा हूँ उसको आप पढ़ते हैं. पढ़ने के लिए आंख का प्रयोग करते हैं. जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनते हैं. सुनने के लिए कान का प्रयोग करें. एक बार आपने देख लिया या सुन लिया, उसके बाद अपने में जांचने का काम कर रहे हैं. ये जांचने का काम, स्वयं के अधिकार पे जांचने का काम, ये मैं में हो रहा है, शरीर में हो रहा है. मैं में हो रहा है, तो फिर शरीर का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं होती. जब कुछ कहना होता है तो शरीर का प्रयोग होता है. क्या कहना है वो आप तय करते हैं. मैं तय करता हूँ और उसको शरीर के माध्यम से एक्सप्रेस करता हूँ. Mechanism of body is man. जो डिसीजन लेने वाला है, तो देखने वाला, समझने वाला है, वो मैं. ऑपरेटर, ठीक है ना. हाँ, उसको निर्णय मैं लेता हूँ. जरूरत होती है तो शरीर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, नहीं तो शरीर को इंस्ट्रक्शन भी नहीं देता हूँ. जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, जब तक आपने निर्णय नहीं लिया ये करना है या वो करना है, तब तक आप शरीर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, शरीर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे. जब आप तय कर लिए, है ना, ये शब्द बोलना है, तब आप शरीर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. ठीक है ना. जैसे अभी आप जांच परख कर रहे हैं, तो हर बार बोल थोड़ी रहे हैं. जब आपको लगता है कुछ बोलना है, तब आप शरीर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बोलो, तो शरीर बोलता है. बोलते समय में अगर आपको ध्यान आएगा कि ये नहीं बोलना, कुछ और बोलना है, आप चुप कर देते शरीर को बोलता हूँ. तो देखने वाला, समझने वाला मैं हूँ.
वाला है ना, या करने का निर्णय लेने वाला कौन है? मैं ही हूं, है ना। तो क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय कौन लेता है? मैं कि शरीर? मैं लेता हूं, आवश्यकता अनुसार शरीर से कराता हूं, ठीक है। सुख और दुख को भोगता कौन है? मैं कि शरीर? किसने गाली दी? ठीक है, शरीर में तो जो सूचना मिली वो सूचना आपको पास ऑन होगी, ठीक है ना। ये गाली है, इसको कौन पहचानता है? मैं कि शरीर? उससे दुखी कौन होता है? अगर आपको हिंदी नहीं आती है, कोई हिंदी में गाली दे रहा है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, आप कहेंगे थैंक यू तुमसे कोई बोला था, इज टेकिंग नोट ऑफ मी। तो शरीर में तो वही असर पड़ा, किसी ने गाली दिया, कोई शब्द प्रयोग किया, उसका जो असर शरीर पे पड़ा वो तो एक ही है, मैं पे अलग अलग पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपको भाषा आती है तो आप पहचानते हैं गाली है, फिर आप परेशान होते हैं, अच्छा गाली दिया, ये दुख आप ही भोग रहे है ना। किसी ने बहुत आपके लिए सम्मानजनक शब्द कहा, उससे शरीर को कोई असर नहीं पड़ा, या जो भी पढ़ना था उतना ही पड़ता है ना। आप भाषा जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो भी। आप अगर भाषा जानते हैं तो आपको पता लगता है कुछ सम्मानजनक शब्द का, आप खुश होते हैं। तो ये जो सुखी दुखी होने का काम है, ये भी मैं का ही है, ठीक है ना। शरीर तो आपको पास ऑन कर देता है। शरीर में कोई चोट सर, शारीरिक कष्ट भी तो होता है। जैसे चोट चपेट लग गया तब क्या होता है? चोट चपेट लगे, शरीर आपको सूचना देता है चोट लग गया, ठीक है ना। शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही को प्रॉब्लम है। इसीलिए देखिए हमारे एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ना भारत में, क्या है, जब कोई बीमार होता है तो लोग उससे मिलने जाते हैं, और इतने लोग जाते हैं कि मिलते रहते हैं, तो खाली नहीं छोड़ते तो सर एक नुस्खा साथ में लेके जाते हैं। तो अभी क्या है, वो बीमार आदमी लेटा हुआ है ना, चिल्ला रहा है, मर गया, कोई पहुंच गया, एकदम उठ के बैठ जाते, हाँ बताइए। अभी आधा घंटा आप बैठे हैं, आपसे बात करता रहता है, हंसता रहता है, शरीर में तो वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, जैसे वो गया फिर मर गया। इसका मतलब शरीर में तो कोई चेंज नहीं हुआ था, शरीर में पहले भी वही चल रहा था, अभी वही चल रहा है। आप आ गए, आपसे बात करने लगा मैं, है ना। अभी क्या है, मैं आपका ध्यान नहीं जा रहा उस तकलीफ पर, है ना, जो कुछ शरीर में टूट फूट हुआ है, तो कोई दुख नहीं हो रहा है, काफी आराम से बात करते रहते, है ना। जैसे वो चला गया दूसरा आदमी, तो फिर दर्द पे ध्यान जाने लगा, है ना, तो आप चिल्लाने लगे, तो शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए जब ऑपरेशन करते हैं ना, एनेस्थीसिया देते हैं, क्या मतलब एनेस्थीसिया का, शरीर तो खत्म नहीं होता उससे, शरीर तो है ही वैसा, है ना, बना हुआ। शरीर के माध्यम से, है ना, जो सूचना आने का काम था आपका, जो पूरा मैकेनिज्म था, है ना, कि शरीर से ब्रेन तक जाना, फिर आप उसको एक्सेस करते हैं। अभी शरीर से ब्रेन तक जाने का जो मैकेनिज्म है उसको आपने ब्लॉक कर दिया, इतने काम कर रहे हैं एनेस्थीसिया देकर, तो क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आप उसको नहीं पढ़ पा रहे, मैं नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है ना। इसलिए आप कुछ भी फाट छाट करते रहिए, शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं, कि नहीं। जैसे आपको सूचना मिलने लगती है, वैसे आप चिल्लाना शुरू करते हैं। कौन चिल्ला रहा है? मैं चिल्ला रहा है? चिल्लाने का निर्णय कौन ले रहा है? सर, जो इफेक्ट्स होती हैं, मतलब कोई भी आप इमोशनल, मतलब मैं का जो भी सोचिए, अब जैसे आप चिल्लाने की बात करें, गुस्सा करने की बात करें, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसके शरीर पे अफेक्ट करता है ना उससे, तो उस चीज को कैसे समझेंगे, मतलब जो देखिए
इन दोनों में सहअस्तित्व तो है ही। मैं कुछ सूचना शरीर को भेजता रहता हूँ, जो सूचना भेजता रहता हूँ उसके हिसाब से शरीर एक्ट करता है। अभी क्या होता है, जब हमको होश नहीं है, अपने बारे पता नहीं है, शरीर के बारे पता नहीं है, शरीर से जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके बारे पता नहीं है, ठीक है ना, तो बहुत बार हम नेसेसरी सूचना भेजते हैं, बहुत बार अननेसेसरी सूचना भेजते रहते हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है इसके बारे में। हाँ सर, वो इंटीमेट होते रहते हैं, एक को एक चिंता है दिल्ली वाला, तो दूसरे को लगता है उसको भी चिंता तो उसका बुद्धि है। हाँ, एक तो वो मुद्दा है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है, आप कुछ सोच रहे हैं, अभी तय भी नहीं कर पाए कि ये करना है कि वो करना है, आप बॉडी को सूचना देते रहते हैं, तो बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, विच आर जस्ट अननेसेसरी, ठीक है ना। इसीलिए आप अगर सोचने में बहुत टेंशन है ना, और आप उसको पास ऑन करते जा रहे हैं, वो जो भी है ना इंस्ट्रक्शन इन बिटवीन, तो बॉडी में बहुत सारा एग्जर्शन दिखाई पड़ता है। एक बार इसको समझ लें दोनों को, तो अपने को पता है कि अगर अनिश्चितता है तो मेरे में है ना, बॉडी में तो नहीं है अभी, और जब तक अनिश्चितता है तब तक हम क्यों इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे हैं बॉडी में। So the same way we can understand stress also. Yes. We can apply the same understanding of stress also. The stress has to do with the self. Again with man, but then it actually appears in form of your body The ailment. symptoms are in the body. Symptoms are in the body. If you keep on passing that instruction unnecessarily, if you are aware, you don't have to pass it to the body, because if you really want the body to do it, you pass on that instruction. Because of lack of awareness, right, you keep passing on even those instructions which you have not finalized. So your confusion, you keep reflecting on the body. So if you become aware, unless you are able to see and understand things, unless you are able to decide what to do, what not to do, you don't pass on any information to the body. So you may be in tension, but you don't put the body in agitation. Your tension then would not reflect in terms of an agitation in the body. And how do I do that? If I become aware of it, aware of myself, and if I become aware of these transactions, then I decide when to pass an instruction to the body, when not to pass an instruction to the body. Sir, is it actually in our hands to control it? Because many a times when Hands में नहीं है, mind में the है. mind may be. Actually, if we are sad or whatever, if we are tense, actually pass on our unknowingly we pass it on to our body. We are able to sleep or whatever. Yeah. And somehow it's done automatically. This automatically means you are not aware of it. That's all. Nothing automatically done, right? It is taking place because I am not aware of it. If I become aware of it, I can be a decider of it. And how does one become aware of it? That's what you are trying to do. All this is the process of becoming aware of oneself. Right? Becoming aware of the body. Becoming aware of the interaction between the self and the body. Right? Then becoming aware of other human beings. Becoming aware of the relationship between one human being and the other human being. Right? So all this we are trying to understand, becoming aware of them. So you look at this thing, right? Check for yourself whether the statements which have been made here and here are true or not. Number one. Number two, whether you are living for the whole of it or only a part of it. Okay. And even this, you are doing it properly or not. तो इसमें कुछ आंख रख करिए, एक बार ये पता लगने लगे कि मैं और शरीर है ना, ये दो तरह के वस्तुएं हैं, है ना, एंटिटीज हैं,
और दोनों को समझा जा सकता है, दोनों के कोएक्सिस्टेंस को समझा जा सकता है, ठीक। तब हम मैं के बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं, है ना? उसको थोड़ा और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सब तरह। तो नेक्स्ट सेशन में उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, सेल्फ को थोड़ा और डेप्थ में इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन द मीन टाइम ये दो चीजें आप जान लीजिए, एक तो ये डिजायर, थॉट एंड सिलेक्शन की जो एक्टिविटी है मैं में, वो चल रही है कि नहीं, उसको जान लीजिए। और वो कंटिन्यूअसली चल रही है, कभी कभी चल रही है ना? इतना होमवर्क करके रखिए। तो ये जो इच्छा, विचार और आशा का जो एक्टिविटी है वो आप में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, whether this activity is going on or not, and if it is going on, is it continuous, is it temporary? इतने को इन्वेस्टिगेट करिए, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, फिर उसको सेल्फ और आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी ह्यूमन बीइंग को इन्वेस्टिगेट किया एज कोएक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो ये सारे जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, कही गई हैं ना, उसको आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए, इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, है ना, सेल्फ वेरीफाई कर लीजिए, सही है नहीं है।